Good evening, sir. Good evening, sir. Yes. Good evening, sir. Yes. Good evening to all of you. We'll start now. Yes, students. See, in the last lecture, हम लोगों ने देखा था कि we have seen the मतलब इससे हमारा आज टॉपिक स्टार्ट होगा spontaneous process. अच्छा, what do you mean by spontaneous process? The process which occurs without any external force in one direction. The process will start by itself without any external force, and it goes only in one direction, are called as a spontaneous process, correct? And all spontaneous processes are natural, and they will occur till they reach what? They will occur in a direction till they leads to equilibrium. फिर हमने देखा कि अगर हमें एनर्जी मालूम रहेगा, तो एनर्जी से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं कैसे डिसाइड करने का। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि ये हमारा जो रिएक्शंस है HCl विथ NaOH इज स्पॉन्टेनियस और उसका डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव था। तो हमने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, दैट process, that reaction can be called as what? Spontaneous. And delta H negative मतलब what? Exothermic. मतलब इनडायरेक्ट हमें ऐसा बोला, मतलब हमने बोला था कि अगर हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रहेगा, तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? स्पॉन्टेनियस। लेकिन बाद में हमने एग्जांपल देखा कि आइस मेल्ट होता है, आइस ऑल्सो मेल्ट स्पॉन्टेनियसली, आइस ऑल्सो मेल्ट स्पॉन्टेनियसली। मतलब अब अगर आइस को हम 0 डिग्री के ऊपर रखेंगे तो बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग आइस मेल्ट, एंड अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, एंड द प्रोसेस इज गोइंग टू बी व्हाट? एंडोथर्मिक। मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम एनर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते। हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं हम एनर्जी से, मतलब एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक देख के नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे और एक नया कुछ टर्म रहेगा जिसे हमें डिसाइड करना है। तो आज हमें उस नए टर्म्स के बारे में स्टडी करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो द न्यू टर्म वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज एंट्रोपी। The new term we are going to learn today is entropy. Now, what is entropy? I'll just explain slowly. अभी entropy हमारे लिए नया टर्म है, तो entropy के बारे में हम स्टडी करेंगे। Suppose, for example, I'll say here we are having
solid, ice. अगर हमारे पास ice रहेगा, ice मतलब water, then we know that all water molecules are closely packed. All water molecules are closely packed. ये solid है मतलब ice है, and in ice all water molecules are closely packed. Ice. लेकिन ice अगर melt होगा तो will change into liquid water, and the molecules are little far away from each other. Molecules are far away from each other. और अगर आप liquid heat करोगे, मतलब ice on heating will melt into what? Liquid, and liquid on heating will change into what? Gas, मतलब vapor, water vapor, and water vapors are still far away from each other. तो नॉर्मली यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, देखो, इन आइस all water molecules are in definite order. All water molecules are in definite order, the proper order में. But liquid में क्या हो रहा है, थोड़े इधर उधर गए मतलब what we can say here, they are disordered. They are disordered, मतलब यहाँ पे definite order में है और यहाँ पे disordered में है, correct? तो here they are in the definite order, मतलब proper arrangement वगैरह है, but यहाँ पे they are in the disordered state. They are in the disordered state. और यहाँ पे जब water को heat करके हमें water vapors मिले, the molecules are still far away from each other, so we can say here they are in the highly disordered state. They are in highly disordered state. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, देखो कि यहाँ पे water molecule properly arrange है, यहाँ पे water molecule थोड़ी properly arrange नहीं है, मतलब they are in the which state? Disordered state. और यहाँ पे molecule और थोड़े disorder है, मतलब highly disordered state. So normally what we have seen, कि when we go from solid to liquid and liquid to gas, disorder goes on increasing. When we move from, or when we convert solid to liquid to gas, when we convert solid to liquid to gas, disordered state goes on decreasing, मतलब disorder हमारा decrease हो जाता है कि when we convert solid into liquid and liquid into gas, disorder state goes on disorder state, मतलब यहाँ पे order है, यहाँ पे disorder और यहाँ पे highly disorder, so disorder state goes on increasing. Yes, disorder goes on increasing, correct? So now here, what is entropy? What is entropy? I'll write down here. The disorder or randomness is measured by entropy. देखो, disorder के लिए दूसरा वर्ड कौन सा यूज करोगे? रैंडमनेस. मतलब देखो यहाँ पे कैसे प्रॉपर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रॉपर नहीं, यहाँ पे रैंडम है, यहाँ पे भी रैंडम है, लेकिन यहाँ पे लेस रैंडम, यहाँ पे मोर रैंडम. तो आइदर यू कैन यूज द वर्ड रैंडम
और यू कैन यूज द वर्ड डिसऑर्डर। लेकिन हमारे देखो यहाँ पे वाटर में कितना डिसऑर्डर है, यहाँ पे वाटर में कितना डिसऑर्डर है, तो डिसऑर्डर or randomness is measured by a term called as what? Entropy. कौन कौन लेक्चर चालू है मेरे. Varad, please mute yourself. Varad. Okay. तो एक मिनट है, सॉरी. तो हमारे सिस्टम में मतलब हमारे पास जो भी सिस्टम रहेगा, हमारे पास जो भी सब्सटेंस रहेगा, उस सब्सटेंस में रैंडमनेस कितना है, उस सब्सटेंस में डिसऑर्डर कितना है. तो सब्सटेंस के अंदर जो डिसऑर्डर रहेगा, सब्सटेंस के अंदर जो रैंडमनेस रहेगा, दैट इज मेजर बाय अ न्यू टर्म कॉल्ड एज व्हाट? एंट्रोपी. हम लोग एंट्रोपी किसके लिए यूज करेंगे? द एंट्रोपी टर्म इज यूज टू मेजर द डिसऑर्डर or randomness present in the system. It is denoted by S. Entropy is denoted by the letter S, and greater the disorder, of a system, greater the disorder of a system, larger is its entropy. Larger is its entropy. मतलब हमारे सिस्टम में जितना ज्यादा डिसऑर्डर रहेगा, उतना हमारे सिस्टम का एंट्रोपी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. करेक्ट. तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे कि when we go from solid to liquid, disorder increases, so entropy also goes on increasing. And when we go from liquid to gas, disorder becomes what? More. And because of the more disorder, we will have the more entropy. तो बच्चों मुझे बोलो, आपको एंट्रोपी टर्म किससे रिलेटेड है, पता चला आपको या समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. यस. किससे रिलेटेड है बोलो आप, जो भी आपको समझ. ऑर्डर ऑफ द स्टेट. हाँ, ऑर्डर ऑफ द स्टेट. ऑर्डर नहीं, डिसऑर्डर. ऑर्डर मतलब डिसऑर्डर से रिलेटेड. मतलब अगर डिसऑर्डर कम रहेगा तो एंट्रोपी का वैल्यू कम रहेगा, और डिसऑर्डर ज्यादा रहेगा तो एंट्रोपी का वैल्यू ज्यादा रहेगा. तो बेसिकली एंट्रोपी डील्स विद व्हाट? द डिसऑर्डर और रैंडमनेस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. करेक्ट. तो अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे, खाली ऐसे हमने एग्जांपल लेंगे कि एंट्रोपी कभी इंक्रीज होगा और एंट्रोपी कभी डिक्रीज होगा, एंट्रोपी कभी इंक्रीज होगा और एंट्रोपी कभी डिक्रीज होगा, उसके एग्जांपल लेंगे. तो I'll just take the first example here, that is the first intro here is what? Dissolution of solid iodine in water. Dissolution of solid iodine in water. मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे आयोडीन है, बट आयोडीन इन द विच स्टेट? सॉलिड. तो अगर हमारा आयोडीन सॉलिड स्टेट में रहेगा, एंड अगर कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड स्टेट में है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी इन द विच स्टेट? ऑर्डर स्टेट. लेकिन अगर आयोडीन हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एक्यू मतलब एक्वियस, एक्वियस मतलब वाटर, अगर आयोडीन सॉलिड स्टेट में है तो ऑल पार्टिकल्स आर इन द ऑर्डर स्टेट, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट है. लेकिन अगर आप आयोडीन को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हमें क्या मिलेगा? आयोडीन इन एक्वियस स्टेट, मतलब इन वाटर,
और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयोडीन पार्टिकल एक जगह रहेंगे क्या? नहीं, दे विल स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर एंड दैट मीन्स हियर दे आर गोइंग टू बी इन द डिसऑर्डर स्टेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि आयोडीन जो हमारा सॉलिड स्टेट में है, मतलब ऑर्डर स्टेट में है, डिसऑर्डर स्टेट में जा रहा है। तो अगर हमारा सब्सटेंस ऑर्डर में से डिसऑर्डर स्टेट में अगर जा रहा है तो हमारा जो एंट्रोपी रहेगा, डेल्टा एस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होगा। एंट्रोपी इंक्रीज होगा मतलब एंट्रोपी कैसे रहेगा? हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो हमें क्या लिखना है, क्या देखना है कि अगर डिसऑर्डर बढ़ रहा है, अगर डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो वैल्यू ऑफ द चेंज इन एंट्रोपी इज गोइंग टू बी व्हाट? पॉजिटिव। वैल्यू ऑफ चेंज इन एस मतलब एंट्रोपी, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन एंट्रोपी इज व्हाट? पॉजिटिव। आई टेक वन मोर एग्जांपल। तो हियर यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, आयोडीन इन द सॉलिड स्टेट सिस्टम। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, entropy of system increases, entropy of system increases. We just take one more example. Second example right here, that is dissociation of hydrogen molecules into atoms. Dissociation of hydrogen molecules into atom. तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? हाइड्रोजन in the gaseous state. How many mole? 1 mole. Hydrogen in the gaseous state. How many mole? 1 mole. Will convert. यहाँ पे 1 mole हाइड्रोजन इन द gaseous state है, और ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमें क्या मिलेंगे? 2 हाइड्रोजन आइटम इन द gaseous state. अब यहाँ पे कैसे देखोगे? यहाँ पे हाइड्रोजन भी gaseous state में है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी gaseous state में, दोनों गैस है। लेकिन क्या देखोगे फिर? मोल देखो। यहाँ पे कितने मोल्स है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीजिंग। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज होंगे तो डिसऑर्डर आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो आई कैन जस्ट राइट डाउन हियर, अगर देखो दोनों गैस है, जब दोनों गैस रहेंगे तो हमें क्या देखना है? मोल। हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। एंड हियर हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम? 2। सो नंबर ऑफ मोल आर इंक्रीजिंग। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ेंगे, अगर पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो डिसऑर्डर आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर हमारे पास पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो डिसऑर्डर आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, करेक्ट? डिसऑर्डर आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे भी हमारा जो एंट्रोपी है, डेल्टा एस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। यहाँ पे भी हमारा एंट्रोपी पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? एंट्रोपी हमारा पॉजिटिव आएगा। ओके, और मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दूं तो एटलीस्ट पता चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है। 2H2 in the gaseous state plus O2 in the gaseous state gives you 2H2O in the liquid state. तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप, हाइड्रोजन इन द गैस, ऑक्सीजन इन द गैस। तो यहाँ पे दोनों गैस है, बट वी आर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। द गैस का मतलब क्या हो गया? हाईली डिसऑर्डर स्टेट, हाईली डिसऑर्डर स्टेट। और लिक्विड मतलब क्या हुआ? लेस डिसऑर्डर स्टेट। तो वी आर गोइंग फ्रॉम हायर डिसऑर्डर स्टेट टू लोअर डिसऑर्डर स्टेट। तो हमारा जो डेल्टा एस का जो साइन रहेगा वो कैसे रहेगा? नेगेटिव रहेगा। डेल्टा एस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। हम लोग खाली एंट्रोपी का वाले इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है बोल रहे, डेल्टा एस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा था?
लेस डिसऑर्डर से मोर डिसऑर्डर में जा रहे थे तो डेल्टा एस इज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाईली डिसऑर्डर, ऑलरेडी हमारे पास सब्सटेंस गैस फॉर्म में है and we are converting it into a liquid form, so we are going from highly disordered state to a less disordered state, the entropy change is going to be what, negative. और एक एग्जांपल लो, calcium carbonate in the solid state on heating will change into what, calcium oxide in the solid state plus carbon dioxide in the gaseous state. Calcium carbonate in the solid state will convert into what, calcium oxide in the solid state plus carbon dioxide in the gaseous state. तो यहाँ पे क्या होगा देखो, solid 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 gas, तो यहाँ पे गैस आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, solid मतलब it is going to be in the order state and यहाँ पे solid है लेकिन यहाँ पे गैस तो मिल रहा है and गैस मतलब highly disordered state, highly disordered state, and so here the entropy is going to be positive. Entropy is going to be positive. Entropy is going to be positive. Correct? Highly disordered state, entropy is going to be positive. So at least अभी एंट्रोपी का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे बाद में देखेंगे, लेकिन एंट्रोपी पॉजिटिव कभी रहेगा या एंट्रोपी निगेटिव कभी रहेगा, आप बता पा सकते हो क्या? Yes, sir. एंट्रोपी पॉजिटिव कभी रहेगा? When the substance is in ordered state, like when the reactant is in ordered state and the product unordered or disordered state. Yeah, when the substance will convert from the ordered state to more disordered state, the value of the entropy is going to be positive. When are we going to have the value of the entropy is negative? So when From the reactant disordered- is disordered and product is more ordered. Yes, correct. When we are going from disordered state to ordered state, matlab, or we are going from higher disorder to lower disorder state, the value of the entropy is going to be negative. तो अभी हमें लोग एंट्रोपी नया टर्म पढ़ लिया, एंट्रोपी का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो भी देख लिया. Now we have to say how to measure the value of the entropy. So we are having the next heading here, that is quantitative definition of entropy. क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी का डेफिनेशन मतलब क्वांटिटी मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब क्वांटिटी. हम क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब एंट्रोपी का वैल्यू. अभी यहाँ पे हमें क्या पता चला कि एंट्रोपी पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि एंट्रोपी का वैल्यू, एंट्रोपी का अमाउंट, एंट्रोपी का क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट कर. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी. So what is entropy here? So already we know that entropy is a measure of molecular disorder or randomness. Entropy is a measure of molecular disorder or randomness. मतलब एंट्रोपी हम लोग किसके लिए यूज करते हैं कि अगर हमारे मॉलिक्यूल में कितना डिसऑर्डर है या हमारे मॉलिक्यूल में कितना रैंडमनेस है वो मेजर करने के लिए. करेक्ट. And the entropy, the change in the entropy is given by the formula Q reversible upon T. तो हमारा एंट्रोपी मेजर करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, Q रिवर्सिबल अपॉन T. ना Q रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, Q रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास
कोई सिस्टम है और I Change can in see here, energy is less. yes, Change in energy is very less. थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा बेटा आवाज, थोड़ा बराबर बोलो. So change in energy is very less. नहीं, एनर्जी चेंज होगा, लेस नहीं, मतलब क्यों, व्हाट यू आर सेइंग इज एनर्जी चेंज होगा, बट एनर्जी विल चेंज इन विच मैनर, रिवर्सिबल मैनर. रिवर्सिबल मैनर का मतलब क्या होगा मालूम है कि अगर गैस के ऊपर पानी गर्म करने के लिए रखोगे, अगर गैस के ऊपर पानी गर्म करने के लिए रखोगे तो पानी गर्म हो जाएगा, गैस ऑन करने के बाद पानी गर्म हो जाएगा. लेकिन अगर बर्नर ऑफ करोगे, मतलब गैस का बटन अगर बंद कर दोगे, तो जो गर्म पानी है वो ठंडा हो जाएगा. इसका मतलब पानी को अगर हीट दो तो पानी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन अगर बर्नर बंद कर दो, गैस बंद कर दोगे तो पानी से हीट बाहर निकल जा रहा है. मतलब हम लोग हीट कैसे सप्लाई कर रहे हैं, रिवर्सिबल. मतलब सिस्टम को हीट दे भी सकते हैं या सिस्टम से हीट रिमूव भी कर सकते हैं. सिस्टम को हीट दे सकते हैं, मतलब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा या सिस्टम हीट रिलीज करेगा, दोनों पॉसिबिलिटीज. दोनों, पानी गर्म करोगे तो पानी गर्म पानी होगा कैसे, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद. लेकिन अगर हमारे पास गर्म पानी है तो गर्म पानी हीट रिलीज करेगा, तो हीट कैन बी एब्जॉर्ब एंड हीट कैन बी रिलीज, दोनों पॉसिबल है. तो इसलिए क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर. लेकिन हीट सप्लाई करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है, टेम्परेचर भी ध्यान में रखना है. हीट सप्लाई करते समय टेम्परेचर भी ध्यान में रखना है. फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेता हूँ. ये हमारे पास एक बीकर है, यहां पे मैंने हीट सप्लाई किया 10 किलो जूल. सेकेंड बीकर है, यहां पे मैंने हीट सप्लाई किया 25 किलो जूल. तो नाउ टेल मी इन द फर्स्ट बीकर, दोनों अमाउंट सेम है. यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल वाटर कितना लिया हुआ है 10 ml, और यहाँ पे भी वाटर कितना लिया हुआ है 10 ml. दोनों बीकर में अमाउंट ऑफ द वाटर सेम है, बट फर्स्ट बीकर आई एम सप्लाइंग द 10 किलो जूल ऑफ हीट. To the second beaker, I am supplying the 25 kilojoule of the heat. So obviously second beaker को मैं ज्यादा हीट सप्लाई कर रहा हूं. तो मुझे अभी बोलो कौन से बीकर में ज्यादा डिसऑर्डर मिलेगा. Second वाले में. यस, सेकंड वाले में. सेकंड वाले में क्यों मिलेगा, करेक्ट आंसर करेक्ट है. सेकंड वाले में डिसऑर्डर ज्यादा क्यों मिलेगा, Heat more ज्यादा supply किया है. yes, because heat involved is more, and because more heat is involved, the more molecule will get vaporized and more molecule will convert into gaseous state. So because more heat is because more heat is involved or we are supplying more amount of the heat, disorder will be more. तो यहाँ पे हमें क्या रहेगा, more disorder. यहाँ पे भी disorder रहेगा, but is going to be what, less disorder. और यहाँ पे डायरेक्टली पता चलता है ना, देखो एंट्रोपी चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू. एंट्रोपी चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू. lesser the amount of the heat you supply, lesser will be the change in the entropy, and more the amount of the heat you supply, more will be the change in the entropy. So change in the entropy is directly proportional to the heat supplied. ये हुआ. अभी दूसरे एग्जांपल में देखो, फर्स्ट बीकर, अमाउंट ऑफ वाटर 10 ml लिया है, यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे 10 किलो जूल और पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड बीकर में पानी लिया है सेम अमाउंट 10 ml लिया है, पानी को हीट सप्लाई करेंगे 10 किलो जूल, लेकिन पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस. देखो इन बोथ बीकर amount of water is same, correct? To the both beaker amount of heat supplied is same, but one beaker is maintained at 25 डिग्री सेल्सियस. मतलब ये जो बीकर में पानी है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री है और ये जो बीकर है उसमें पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री. तो अभी मुझे बोलो कौन से बीकर में, ये बीकर नंबर 1, ये बीकर नंबर 2, इन विच बीकर यू विल गेट मोर डिसऑर्डर. दोनों जगह डिसऑर्डर मिलेगा, दोनों जगह हीट सप्लाई करेगा मतलब दोनों जगह डिसऑर्डर मिलेगा, but in which beaker you will get the more disorder, and in which beaker, yes,
First one में more first disorder. फर्स्ट वन में विल गेट मोर डिसऑर्डर. क्यों? So because change in entropy is indirectly proportional to temperature. इनवर्सली चेंज इन द Inverse. एंट्रोपी. करेक्ट, मतलब तुमने सही बोला कि यहाँ पे चेंज इन द एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. मतलब लोअर टेम्परेचर पे अगर हीट सप्लाई करोगे तो ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा, और यहाँ पे डिसऑर्डर, यहाँ पे क्या होगा, मोर डिसऑर्डर, और यहाँ पे क्या होगा, लेस डिसऑर्डर. मैं एक्सप्लेन करता हूं. तुम बोलोगे अरे यहाँ पे टेम्परेचर तो ऑलरेडी 100 है, लेकिन कैसे मालूम है? यहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी 100 है, ऑलरेडी 100 है, मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी डिस्टर्ब है. तो उसमें से अगर आप 10 किलो जूल हीट सप्लाई करोगे तो ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा. तो यहाँ पे कैसे है, ऑलरेडी मॉलिक्यूल इन द डिसऑर्डर स्टेट है, वहां पे 10 किलो जूल हीट अगर आप सप्लाई करोगे तो ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होगा. तो यहाँ पे लेस डिसऑर्डर होगा, मतलब बाद में 100 डिग्री का. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वाटर हमारा ऑलरेडी 25 डिग्री पे है, मॉलिक्यूल सब शांत है, लेकिन अगर आप 10 किलो जूल हीट सप्लाई करोगे तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, तो इट इज गोइंग टू बी मोर डिसऑर्डर. और वो भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कैसे लिख सकते हो, द चेंज इन द एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. लोअर द टेम्परेचर, मतलब लोअर टेम्परेचर पे अगर आप हीट सप्लाई करोगे, लोअर टेम्परेचर पे अगर आप हीट सप्लाई करोगे, द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड विल बी मोर. एंड हायर टेम्परेचर पे अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएटेड विल बी व्हाट, लेस. तो ये हमारा फैक्टर है. मतलब हम लोग जब हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करते समय हमारा वहां का स्टार्टिंग का टेम्परेचर कितना है वो भी इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया है, देखो यहाँ पे सेंटेंस दिया है, एन एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम, an entropy change of a system is equal to the amount of heat transfer to it in a reversible manner divided by the temperature in Kelvin at which the transfer take place. मतलब आप जब हीट सप्लाई करोगे तो हीट सप्लाई करते समय खाली हीट को मत देखो, यहाँ पे खाली हीट देख रहे थे, खाली हीट को मत देखो, क्या देखना है आपको, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम भी देखना है. तो अगर आपने लोअर टेम्परेचर पे हीट सप्लाई किया तो डिस्टर्बेंस डिसऑर्डर विल बी द मोर, और हायर टेम्परेचर पे अगर हीट सप्लाई किया डिसऑर्डर विल बी लेस. एक सिंपल एग्जांपल दो, देखो कि अगर आप दो सिचुएशन में हो, एक आप लाइब्रेरी में बैठे हो, कॉलेज लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी में बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, और दूसरे सिचुएशन में आप ट्रेन प्लेटफॉर्म पे हो, प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म पे हो. अभी लाइब्रेरी बोलोगे तो ऑब्वियसली पता चलता है कि वहां पे सब शांत रहेगा, कोई किसी से बात नहीं करेगा, हर एक अपना पढ़ाई करेगा, मतलब एनवायरमेंट इज वेरी साइलेंट, साइलेंस है, पिन ड्रॉप साइलेंस लाइब्रेरी. और जब आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे हो, तो वहां पे बहुत सारी पब्लिक रहेंगी, मतलब वहां पे बहुत सारा डिस्टर्बेंस ऑलरेडी है. ओके, दोनों जगह देखा तो एक लाइब्रेरी है जो बहुत साइलेंस है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म है वहां पे ऑलरेडी बहुत नॉइज है. अभी लाइब्रेरी में तुम्हारे सामने कोई आके स्नीज करेगा, मुझे शिंकला स्नीज करेगा, और रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप खड़े हो तो वहां पे आपके आजू बाजू में कोई स्नीज करेगा, मतलब शिंकेला सा भरपूर. तो कौन से केस में आप ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, लाइब्रेरी में आप ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्टर्ब? लाइब्रेरी. लाइब्रेरी, यस, बिकॉज लाइब्रेरी में क्या था, ऑलरेडी मॉलिक्यूल इन द ऑर्डर स्टेट थे, और वहां पे कोई स्नीज करेगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएटेड विल बी मोर. लेकिन रेलवे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी इतना नॉइज है, ऑलरेडी हमें कुछ सुनने के लिए नहीं आ रहा है, उसमें से एक दो जन अगर स्नीज भी करेंगे तो वी विल नॉट गेट अफेक्टेड, तो वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएटेड विल बी व्हाट, लेस. तो ये हमारा एंट्रोपी मेजर करने का फॉर्मूला है, दैट चेंज इन द एंट्रोपी इज व्हाट, Q रिवर्सिबल अपॉन T, Q रिवर्सिबल अपॉन T. एंड तो देखो हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था, एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू Q reversible upon T, and we know that heat supplied at constant pressure is called as what, delta H. Heat supplied at constant pressure is called as what, delta H.
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा बीकर ओपन है, बीकर ओपन मतलब यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा 1 बार, बीकर ओपन मतलब प्रेशर कितना रहेगा 1 बार, एंड 1 बार प्रेशर इज अ कांस्टेंट, so we are supplying the heat at constant pressure, so we can say here entropy of system is delta H upon T. और हम लोग किसी का ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, एंड कुछ भी नहीं लिखा मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम. एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय व्हिच फॉर्मूला, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच. कैसे आया? बिकॉज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज डेल्टा एच. एंड सो अभी यूनिट क्या आएगा? देखो यूनिट अभी हीट enthalpy can be measured in which unit? Joule. Temperature is measured in which unit? Kelvin. किलोजूल में भी मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जूल ले रहा हूँ, जूल एंड ये केल्विन, तो यूनिट क्या आएगा हमारा? जूल पर केल्विन. So I'll write here the unit of entropy is जूल पर केल्विन. यूनिट ऑफ एंट्रोपी नॉर्मली हम लोग किलो जूल में भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग एंट्रोपी किस पे मेजर करते हैं? जूल में. यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? जूल पर केल्विन. सो यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन. ओके, तो यहाँ पे मुझे बोलो बच्चों, एंट्रोपी किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंट्रोपी किसके ऊपर डिपेंड करता है? Heat and temperature. हीट एंड, हाँ दोनों. खाली ऐसे नहीं बोलोगे एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन ओनली हीट, नहीं. एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन द हीट सप्लाइड एट अ गिवन टेम्परेचर. मतलब कौन से टेम्परेचर पे आप हीट सप्लाई करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है. हीट सप्लाई करोगे लोअर टेम्परेचर पे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट विल बी मोर, and heat supplied at higher temperature disturbance created will be what? Less. So entropy depends upon the heat supply at a given temperature. Okay, ये हुआ हमारा Q reverse entropy. क्यों लिखा है? Okay. Yes, Q reverse मतलब क्या है? रिवर्स मतलब ये रिवर्स इसकी बात कर रहे हो? Q reverse कैसे डिपेंड है? Q reverse क्यों लिखा है? ये वर्ड की बात कर रहे हो तुम? Yes sir, yeah. रिवर्स मतलब वही ना, मतलब हम लोग हीट सप्लाई भी कर सकते हैं और हीट रिमूव भी कर सकते हैं ना. मतलब यहाँ पे कैसे हो रहा है कि हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होगा ना कि अगर हमारे पास गर्म पानी रहेगा, ऑलरेडी गर्म पानी रहेगा, तो पानी से हीट बाहर निकलेगा ना. Yes. तो वैसे भी बोल रहा हूँ, मतलब पानी गर्म रहेगा तो गर्म पानी से हीट बाहर निकलेगा. तो मे भी पानी का स्टार्टिंग का टेम्परेचर रहेगा 100, कभी स्टार्टिंग का टेम्परेचर रहेगा 80. तो ऑलरेडी वाटर अगर हमारा 100 पे है तो उसे हीट रिमूव करो, ऑलरेडी हमारा वाटर 80 डिग्री पे है उसका हीट रिमूव करो, तो हीट रिमूवल भी पॉसिबल है और हीट एब्जॉर्ब करना भी पॉसिबल है. मतलब एंट्रोपी दोनों पॉसिबल है, इसलिए हम लोग क्यू रिवर्सिबल लिखते हैं. Yes. तो उसमें भी चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव ही रहेगी ना? नहीं, मतलब जब कैलकुलेट करोगे आप तो एंट्रोपी डेल्टा एस का वैल्यू जो आपको मिलेगा, वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और वैल्यू कैन बी नेगेटिव, डिपेंड है तुम्हारे डेल्टा एच के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना यहाँ पे. यस. डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव भी है और एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव भी है. तो हमारा एंट्रोपी कैसे होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है और एंट्रोपी नेगेटिव भी हो सकता है. ओके सर. ठीक है, लेकिन अभी हमें देखो, अभी हमें क्या पता चला कि एंट्रोपी किससे रिलेटेड है? एंट्रोपी इज रिलेटेड टू व्हाट? डिसऑर्डर. ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या देखा कि एंट्रोपी का वैल्यू पॉजिटिव कभी रहेगा, एंट्रोपी का वैल्यू नेगेटिव कभी रहेगा, वो भी देखा. उसके बाद एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखा. डेल्टा एच अपॉन टी मतलब क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी मतलब डेल्टा एच अपॉन टी, और एंट्रोपी का यूनिट देखा. अभी हमें देखना है यहाँ पे एंट्रोपी से हमें रिएक्शन या हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं कैसे डिसाइड करें. एंट्रोपी से मतलब एंट्रोपी का वैल्यू देख के हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंथैल्पी का वैल्यू देखा था, एंथैल्पी का,
और एंथैल्पी से डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, लेकिन हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए। एंथैल्पी का वैल्यू देख के हम लोग डिसाइड करना चाहते थे कि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन हम एंथैल्पी का वैल्यू देख के डिसाइड नहीं कर सकते। तो अभी हमें क्या करना है, एंट्रोपी मिला। अभी हम देखते हैं क्या हम एंट्रोपी से हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है डिसाइड कर सकते हैं क्या। तो विल जस्ट टेक द एग्जांपल, विल टेक द एग्जांपल। Okay, let's take the example. Consider the spontaneous reaction at room temperature. Consider the spontaneous reaction at room temperature. मतलब हमारा रिएक्शन ऑलरेडी स्पॉन्टेनियस है। कौन सा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, देखो 2H2O2 in the liquid state. Now 2H2O2, H2O2 is a hydrogen peroxide, will change 2H2O in the liquid state plus O2 in the gaseous state. मतलब देखो ये ऑलरेडी, देखो यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे गैस। डिसऑर्डर बढ़ रहा है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप होगा ये रिएक्शन। और यहाँ पे डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव, और कितना पॉजिटिव दिया है, 126 जूल पर केल्विन। देखो यहाँ पे यूनिट है जूल पर केल्विन। तो यहाँ पे तो देखो उन्होंने ऑलरेडी क्या बोला है कि हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। फिर मैंने देखा कि स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस का मैंने साइन देखा पॉजिटिव है। तो मैंने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि जहां पे भी हमारा डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, जब भी हमारा डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, वो हमारा सिस्टम कैसे होगा, स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब अगर डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव रहेगा, मतलब प्रोसेस कैसे रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसा मतलब कंक्लूजन मैं निकाल रहा हूं। तो मैंने क्या बोला कि उन्होंने ऐसा बोला कि स्टार्टिंग में बोला कि ये हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। फिर मैंने रिएक्शन लिखा, फिर मैंने डेल्टा एस का वैल्यू लिखा, उसका साइन देखा। तो मैंने ऐसा लॉजिक निकाला कि अगर डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, अगर डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, means that process is going to be spontaneous. Okay, so I can say right here, from above example, it is clear that the entropy of the system increases in the spontaneous process. Okay, from above example, it is clear that the entropy of the system increases in a spontaneous process. देखो यहाँ पे entropy increase हो रहा है, यहाँ पे entropy positive मतलब increase हो रहा है in a spontaneous process. लेकिन consider दूसरा reaction, consider the second reaction. Now what is second reaction here? 2H2 in the gas state plus O2 in the gas state gives you 2H2 in the liquid state. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, gas, and we are going into which state, liquid. And so here the value of the entropy is negative, minus 327 joule per Kelvin.
तो मैंने ऐसा जस्ट लॉजिक निकाला कि अगर हमारा एंट्रोपी पॉजिटिव रहेगा तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और अगर हमारा डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव रहेगा तो रिएक्शन इज गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस। करेक्ट, मतलब डेल्टा एस अगर नेगेटिव रहेगा तो हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम डिसऑर्डर स्टेट टू ऑर्डर स्टेट। तो एंट्रोपी नेगेटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, बट I can write here the entropy of the system, मतलब ये हमारा सिस्टम है, entropy of the system is decreasing. Entropy of the system is decreasing, but the reaction is spontaneous। मतलब ये जो हमारा रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव है, डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो हमारा स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब डेल्टा एस का वैल्यू देख के, पॉजिटिव या निगेटिव देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। आप डेल्टा एस का वैल्यू देख के, ये हमारा सिस्टम है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। तो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम देख के वी कैन नॉट डिसाइड whether reaction is spontaneous or not। क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली एंट्रोपी पहले हम लोग एंट्रोपी के बारे में लर्न किया। अभी हमें क्या करना है, एंट्रोपी का वैल्यू देख के हमें डिसाइड करना है कि हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो हमने क्या लॉजिक लगाया था कि अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब अगर एंट्रोपी नेगेटिव रहेगा तो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन ये रिएक्शन, in spite of having the negative value of the entropy, the process is what, spontaneous। इसका मतलब एंट्रोपी का वैल्यू, खाली ये सिस्टम है, एंट्रोपी का वैल्यू देख के हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है हम लोग नहीं बोल सकते। तो कैसे बोलेंगे, तो उसके लिए कुछ और एक नया कंसेप्ट रहेगा। लेकिन बच्चों आपको यहां तक समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes. ओके, थैंक यू। अभी हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक लॉ लर्न करना है, एंड दैट इज वी आर गोइंग टू लर्न हियर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? देखो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ किया है, क्या मुझे कोई बोल सकता है कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किससे रिलेटेड था? Internal energy. इंटरनल, और दूसरा और किससे रिलेटेड था? PV work. नहीं, मतलब पीवी वर्क से, मतलब हमारे फर्स्ट लॉ में जो सेंटेंस थे या हमारे फर्स्ट लॉ के जो स्टेटमेंट थे वो किससे ज्यादा रिलेटेड थे? मतलब फर्स्ट लॉ में बेसिक क्या बोला गया है हमें? वर्क एनर्जी Conservation of energy. यस, करेक्ट। मतलब फर्स्ट लॉ टॉक अबाउट व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब इंटरनल एनर्जी, वर्क वगैरह सब कुछ बोल रहा है, लेकिन फर्स्ट लॉ मेन किसके ऊपर फोकस कर रहा है कि हम लोग एनर्जी कंजर्व करते हैं। मतलब वेदर यू गो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट एनर्जी इज कंजर्व। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मतलब एनर्जी कंजर्वेशन। तो अभी सेकेंड लॉ हमारा क्या बोल रहा है, देखो मैं पहले सेंटेंस लिखता हूँ सेकेंड लॉ का। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स states that total entropy of system and its surrounding increases in a
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखिए यहाँ पे सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट टोटल एंट्रोपी, टोटल, अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, देखो ये हमारा रिएक्शन, तो ये क्या हुआ, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, मतलब एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ये हमारा रिएक्शन है, तो ये हमारा सिस्टम, तो यहाँ पे क्या था, एंट्रोपी, कुछ भी नहीं लिखा मतलब सिस्टम है, ये हमारा एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है। लेकिन सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि अगर आपको प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं अगर आपको बोलना है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको टोटल एंट्रोपी देखना पड़ेगा। टोटल एंट्रोपी मतलब क्या है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, आपको दोनों देखना पड़ेगा, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग आपको देखना पड़ेगा। मतलब ऐसे डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, एंड ये वैल्यू कैसा होना चाहिए, इंक्रीज, मतलब ग्रेटर देन 0, और मतलब टोटल एंट्रोपी अगर हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा, then the process is going to be spontaneous, then the process is going to be what, spontaneous। ये हमारा सेकेंड लॉ है। मतलब अगर आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, दोनों एंट्रोपीज को ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा, टोटल एंट्रोपी। और अगर आपका टोटल एंट्रोपी कैसे रहेगा, इंक्रीज, मतलब ग्रेटर देन क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो आपका प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो अभी हमें देखना है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब क्या फॉर्मूला, तो आई जस्ट एक्सप्लेन सेम एग्जांपल। देखो अभी मैं ये सेम एग्जांपल ले रहा हूं, 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2, और यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम नेगेटिव था, लेकिन तो भी हमारा प्रोसेस कैसा था, स्पॉन्टेनियस। आई एम जस्ट टेकिंग द सेम एग्जांपल। आपको कोई एग्जांपल नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपको सेकेंड लॉ मालूम होना है, 2H2 गैस प्लस O2 गैस gives you 2H2O liquid, and delta S is equal to minus 327 joule per Kelvin. डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस 327 जूल पर केल्विन, और ये हमारा एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ये हमारा सिस्टम, करेक्ट, सिस्टम का एंट्रोपी। अभी इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच मतलब चेंज इन द एंथैल्पी, द चेंज इन द एंथैल्पी इज माइनस 572 किलो जूल एट 298 केल्विन। मतलब इस रिएक्शन का एंथैल्पी, ये हमें एंट्रोपी है, और इस रिएक्शन का एंथैल्पी कितना है, माइनस 572 किलो जूल। रिएक्शन का एंट्रोपी कितना है, माइनस 327 जूल पर केल्विन, और इस रिएक्शन का एंथैल्पी कितना दिया हुआ है, माइनस 572 किलो जूल एट व्हाट टेम्परेचर, 298 केल्विन, करेक्ट। तो अभी देखो मेरे पास एक फॉर्मूला है, तो देखो ये हमारा सिस्टम है और ये हमारा सिस्टम है, तो ये वैल्यू मुझे मालूम, सराउंडिंग का वैल्यू मुझे मालूम नहीं, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग इज व्हाट, देखो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला क्या था, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला था प्लस डेल्टा एच अपॉन टी, और एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या है, देखो माइनस डेल्टा एच अपॉन टी माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, एक मिनट बस थोड़ा ब्लर हो रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, minus 572. यस, डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस 572। तो ये माइनस फॉर्मूला का, और यहाँ पे आएगा माइनस 572, और यहाँ पे किलो जूल में दिखा, तो मैं इसे जूल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, 10⁻³ जूल, टेम्परेचर 298, एंड देन हियर माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो यहाँ पे आएगा 572
अपॉन 298 इंटू 10⁻³ एंड ये जो कैलकुलेशन हमारा बनेगा वो कितना आएगा 1919 जूल पर केल्विन। तो ये हमारा क्या बना, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या था, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, और इस रिएक्शन का हमें डेल्टा एच मालूम था, कितना था डेल्टा एच, -5 किलो जूल में था, उसे जूल में कन्वर्ट किया। क्यों जूल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एंट्रोपी हमारा जूल में, एंथैल्पी जो किलो जूल में था उसे जूल में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमारा एंट्रोपी जूल में। तो ये आ गया एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। तो अभी देखो आपके पास एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है, आपके पास एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग है, तो आई कैन यूज द फॉर्मूला हियर, डेल्टा एस टोटल is equal to entropy of the system plus entropy of the surrounding. Entropy of the system plus entropy of the surrounding. Entropy of the system कितना रहेगा, -327 -327। एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग कितना रहेगा 1919, और दोनों वैल्यू अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा, +1592 जूल पर केल्विन। 1592 जूल पर केल्विन टोटल एंट्रोपी। ये हमारा क्या बना, टोटल एंट्रोपी। और टोटल एंट्रोपी का वैल्यू देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कैसा है हमारा टोटल एंट्रोपी, हमें जो टोटल एंट्रोपी मिला, टोटल एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0 एंड देयरफॉर द रिएक्शन इज spontaneous. Therefore the reaction is what, spontaneous। इसलिए देखो हमने यहाँ पे लिखा था रिएक्शन, सेम रिएक्शन लिखा था, H2 plus O2 gives you what, 2H2O। डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव था, लेकिन रिएक्शन कैसे है, स्पॉन्टेनियस। लेकिन स्पॉन्टेनियस ने कैसे डिसाइड किया था, तो उन्होंने क्या कैलकुलेट किया था, टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट किया था। टोटल एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। दोनों एंट्रोपीज को कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिला था, टोटल एंट्रोपी मिला था। और अगर हमारा टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव रहेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो प्रोसेस इज गोइंग टू बी व्हाट, स्पॉन्टेनियस। तो फाइनली अभी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। कैसे, बाय यूजिंग टोटल एंट्रोपी। और टोटल एंट्रोपी किससे बना हुआ रहेगा, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द, दोनों से बना हुआ रहेगा। और ये वैल्यू अगर दोनों से पॉजिटिव आएगा तो यही उन्होंने बोला है, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेट्स दैट टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम and its surrounding increases in a spontaneous process. Total entropy of a system and its surrounding increases in a spontaneous process. In a spontaneous process, correct? तो फिर we'll just write down here कि अगर हमारा डेल्टा एस टोटल greater than 0 रहेगा, greater than 0 रहेगा, then I can say here the process is spontaneous। अगर हमारा डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 रहेगा, मतलब निगेटिव रहेगा, इसका मतलब द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर हमारा डेल्टा एस टोटल 0 रहेगा, इक्वल एग्जैक्टली 0 रहेगा, तो कैन से द प्रोसेस is at equilibrium। The process is at equilibrium, correct। तो ये हमारा मतलब अल्टीमेटली
आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, हम डिसाइड कर सकते हैं कैसे, बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस टोटल। डेल्टा एस टोटल अगर हमारा पॉजिटिव रहेगा तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस टोटल अगर निगेटिव रहेगा प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस टोटल अगर 0 रहेगा तो प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। तो इसे हम डिसाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक सेम टाइप का मतलब उसके ऊपर क्वेश्चन था जो अभी हमने कंसेप्ट किया। उन्होंने क्या दिया है देखो यहाँ पे, although delta S for the formation of 2 moles of water from hydrogen and oxygen is minus 327 joule per Kelvin. देखो delta S for the formation of 2 moles of water from hydrogen oxygen minus is minus 327 joule per Kelvin. But reaction is what? Spontaneous. Explain. And given delta H for the reaction what? minus 572, और डेल्टा एच हमारा कितना है? माइनस 572 किलो जूल है। तो ये सेम आंसर है। तो ये हमारा एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम था, ये हमारा एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग था। फिर हमने कैलकुलेट किया टोटल एंट्रोपी, और अगर हमारा टोटल एंट्रोपी अगर आएगा पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस, टोटल एंट्रोपी अगर आएगा नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और टोटल एंट्रोपी अगर 0 आएगा तो इट इज गोइंग टू बी एट इक्विलिब्रियम। तो आपको समझ में आया ये कंसेप्ट? आज का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? Yes, sir. यस, ओके। बिफोर आई प्रोसीड, देखो बच्चों कैसे मालूम है, लास्ट ईयर मतलब जब 12th का अपना ऑनलाइन लेक्चर जब स्टार्ट हुए तो मतलब अपने बोर्ड में डिलीटेड सिलेबस रखा था, डिलीटेड। तो डिलीटेड में ना आज का जो मैं पार्ट अभी कर रहा हूँ ये मतलब एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, ये जो पार्ट है ना इट्स कमिंग अंडर द डिलीटेड लास्ट ईयर। अभी कैसे हो रहा है, ये साल का गाइडलाइंस नहीं आया कि मतलब लास्ट ईयर जो डिलीटेड था वो ये साल भी डिलीटेड रहेगा क्या। मोस्टली जो लास्ट ईयर डिलीटेड था 12th में वो ये बार भी 12th में डिलीटेड रहेगा। तो हमारा यहाँ तक प्रॉपर है, यहाँ एंट्रोपी ऑफ द यूनिट तक प्रॉपर है, लेकिन यहाँ से एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी कैसे डिसाइड करना है, ये पार्ट कहाँ पे आ रहा है? डिलीटेड में आ रहा है। तो आप एक बार कैसे मतलब अगर आप सीईटी दोगे, अपना सीईटी अगर दोगे तो अपने सीईटी में डिलीटेड पोर्शन नहीं आएगा, लेकिन अगर जेई मेंस वगैरह दोगे या मे बी नीट वगैरह तो वहां पे शायद हमारा डिलीटेड पोर्शन वहां पे आ सकता है। मतलब तो ये डिलीटेड में एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी है। और ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने किया दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर डिलीटेड। तो ये पूरा मतलब अभी आगे वाले लेक्चर में जो भी मैं करूंगा वो पूरा डिलीटेड में, लेकिन कैसे मालूम है मैं करूंगा, मतलब ठीक है एकदम 1-2 लेक्चर लगेंगे हमें कंप्लीट करने के लिए, 1-2 लेक्चर लगेंगे, लेकिन कैसे होगा तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अभी थर्मोडायनामिक्स में आज के बाद आगे वाले लेक्चर में हमारा जो टॉपिक चलेगा दैट विल कम अंडर डिलीटेड पार्ट, मतलब जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं रहेगा, लेकिन कंसेप्ट में करूंगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा मतलब जेई मेंस वगैरह देना चाहता है या कोई भी नीट अगर देना तो मतलब थोड़ा हो जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा बेसिक। ठीक है, तो एक आज के इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखो, मतलब न्यूमेरिकल देखो, ये सेम न्यूमेरिकल में कर रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे भी समझ में आएगा तो भी चलेगा। मतलब आई जस्ट शेयर विद यू द न्यूमेरिकल जो टोटल एंट्रोपी के ऊपर बेस। देखो उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट डेल्टा एस टोटल, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट करना है, एंड स्टेट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट करो
एंड फिर डिसाइड करो कि रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं आई जस्ट राइट डाउन हियर एज सॉल्व 4.19 पेज नंबर 86, HgS in the solid state, O2 in the gaseous state, Hg in the liquid state, plus SO2 in the gaseous state. HgS in the solid state, O2 in the gaseous state, Hg in the liquid state and SO2 in the gaseous state. यहाँ पे क्या आएगा, standard enthalpy is equal to minus 238.6 kilojoule. Standard entropy is equal to plus 36.7 joule per Kelvin. Standard enthalpy is minus 238.6 kilojoule. Standard entropy is 36 और टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस 273 अगर करोगे तो कितना आएगा 298 केल्विन। तो देखो यहाँ पे एंथैल्पी दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए, यहाँ पे एंट्रोपी दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए, मतलब ये हमारा एंट्रोपी कौन सा दिया हुआ है, सिस्टम का। देखो अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया रहेगा मतलब इट इज अबाउट सिस्टम, ये हमारा सिस्टम। तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम दिया है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, माइनस व्हाट इज डेल्टा एच, माइनस 238.6 किलो जूल में, उसको जूल में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ जूल। टेम्परेचर 25 डिग्री प्लस 273 विल बिकम हाउ मच, 298। देखो हमारे पास एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है, हमारे पास एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है, हमें एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 238.6 इंटू 10⁻³ अपॉन 298 एंड इक्वल टू, अगर आप डिवाइड करके आंसर वगैरह निकालते, आई एम जस्ट राइटिंग डायरेक्टली द आंसर, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे प्लस 800.7 जूल पर केल्विन। एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग इज प्लस 800.7, करेक्ट, एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। तो अभी हमने क्या लिखेंगे, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू व्हाट, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम मतलब ये 36.7 जूल पर केल्विन, एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग 800.7 जूल पर केल्विन, दोनों का यूनिट सेम है, और अगर ऐड करोगे तो आपको कितना मिला, 837.4 जूल पर केल्विन। तो हमारा ये जो डेल्टा एस टोटल है is greater than 0 and delta is total greater than 0, therefore the process is spontaneous, the process is spontaneous, मतलब हमारा प्रोसेस spontaneous रहेगा। और यहाँ पे होमवर्क में आज के लेक्चर के लिए आपको बता देता हूँ, होमवर्क आज के क्या रहेगा, पेज नंबर 87, MCQ नंबर 7। देखो यहाँ पे देखो एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ द डेल्टा एच का वैल्यू दिया है, उन्होंने क्या बोला है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, और डेल्टा एच का वैल्यू आप कितना लोगे, माइनस 238.9, तो माइनस माइनस से बिकम प्लस, एंड 238.9 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर नहीं दिया है, टेम्परेचर कितना लोगे बच्चों, टेम्परेचर कितना लोगे, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री। क्यों 25 डिग्री लोगे, रूम टेम्परेचर। नहीं, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है,
सर तो 298 केल्विन ना? हाँ मतलब 25 डिग्री मतलब केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 25 डिग्री प्लस 270 तो कितना लोगे 298। और वो 25 डिग्री क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया ना स्टैंडर्ड एंथैल्पी, क्योंकि जब हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करते हैं, जब हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं, हमारा प्रेशर कितना होना चाहिए 1 बार, और हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन होना चाहिए, बराबर। यस ओके ओके, ये एक न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए है। और एक मिनट और देखता हूं मैं। ये एक ही न्यूमेरिकल है, ये टाइप का कर दो, ठीक है। तो मैं अभी, आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हो? No. No sir. Okay, then I'll stop it over here. Remaining part we'll do it in the next lecture. और ये जो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे किया है, ये न्यूमेरिकल भी कहाँ पे आ रहा है, इन डिलीटेड में आ रहा है। तो जो भी मैं डिलीटेड का पार्ट करूंगा वहां पे डी लिखूंगा, डी मतलब इट इज नॉट देयर फॉर, लेकिन आपको एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ सकता है, ठीक है। ओके सो क्या मीटिंग एंड करूं मैं? Yes sir. ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बच्चों। Thank you, sir.